Welcome to today's maths class, and today we'll do lines and angles. So the concept we are going to learn in this chapters are adjacent angle, linear pairs and vertically opposite angle, complementary and supplementary angles and angles made by transversal on two parallel lines. Start करते हैं introduction से. In previous class we have learned about the line segment, ray, angles, type of angles, etc. In this chapter we will read more about angles, their pairs and other geometrical concepts. So angles can be seen in different objects in our daily life, such as angles between hands of clock, angles between upper and lower arm of elbow, angles between windows and a store, angles between head and the shoulder. So आप देखते हैं सब में different angle form होता है. तो हम लेते हैं angles. An angle is made up of two rays starting from the common end point. The common end point that is called vertex of angle, and two rays forming the angle, they are called the arm or the side of angle. So यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एंगल का साइन है. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं गिवन फिगर में तो दो रेज हैं. कौन सी? OP एंड OQ. OP एंड OQ. जो आर्म्स होगी O, जो इनका कॉमन पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स. नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ एंगल. First, adjacent. Adjacent means पास वाले. Two angle with the same vertex and one common arm and other two arms lying on the opposite side of the common arm, they are called adjacent angle. अगर आप इस फिगर में देखें, so in the above figure, angle POQ, इसमें angle POQ means this angle and angle QOR means this angle. ये क्या हो जाएंगे? adjacent angle, because इनका जो vertex है वो common है, एक जो आर्म है वो कॉमन है और अदर जो टू आर्म्स है वो ऑपोजिट साइड में है जो कॉमन आर्म के. क्लियर? सो ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल. इन दिस एंगल AOC, दिस एंगल एंड एंगल BOC, दीज आर एडजेसेंट एंगल. व्हाई? बिकॉज दे हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म OC एंड अदर टू आर्म्स दैट आर ऑपोजिट साइड्स. सो ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल. नेक्स्ट इज लर्निंग टिप्स. The sum of adjacent angle at the point on the one side of the line is 180 degree. Clear? Adjacent angle का जो sum होता है एक point पे जो बन रहे हैं one side में, जो उनका क्या होता है? 180 degree. Next is linear pair. When two adjacent angle together form the 180 degree angle or the straight angle, that pair is called the linear pair. अगर दो adjacent angle हैं वो साथ में 180 degree का angle form कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? linear pair. अगर आप इस फिगर में देखें तो POQ दैट इज 125 डिग्री एंड ROQ दैट इज 55 डिग्री, उनका सम कितना है? 180 डिग्री. दैट मीन्स ये क्या हो गए? लीनियर पेयर. एग्जाम्पल लेते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल AOC इज 115 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOC. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं AB स्ट्रेट लाइन है, AOC एंड BOC क्या है? एडजेसेंट एंगल है. क्लियर? हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर ये क्या हो जाएंगे? इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. मीन्स एंगल AOC प्लस BOC 180 डिग्री है. वन एंगल हमें गिवन है AOC 115, सो BOC हो जाएगा 180 माइनस 115 65 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. When two lines intersect each other at a point, the two pairs of angles formed without any common arms are called the vertically opposite angle. So यहाँ पे आप अगर लाइन को देखें तो AB and CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट O पे. So in the above figure, two vertically opposite angles कौन कौन से फॉर्म हो जाएंगे? एंगल AOC means this angle and एंगल BOD, ये हो जाएंगे दोनों vertically opposite angle. सेम अगर इसको देखें हम AOD, this angle and COB, they are vertically opposite angle. Clear? Next, learning tips. The sum of all angles around a point, एक point के around जितने भी angles होते हैं उनका जो sum होता है 360 degree means equal to 4 right angle. Clear? Example A. PQ and RS are two straight line which intersect each other at a point O. Angle POR 48 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ अदर थ्री एंगल्स. सो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे. ये हमें एंगल दे रखा है POR 48 डिग्री. दैट मीन्स इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा SOQ. ये कितना हो जाएगा? सेम.
बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है 48 डिग्री. क्लियर. नाउ वी नो एडजेसेंट एंगल जो है POR एंड ROQ, इनका सम कितना है 180 डिग्री है. दैट मीन्स ROQ इक्वल्स टू 180 माइनस 48 डिग्री 132 डिग्री. अगर ये 132 डिग्री है तो ये भी 132 डिग्री हो जाएगा. क्लियर. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट इज practice session 9.1. Write T for true and F for false. Two obtuse angle can be adjacent angle. Two obtuse angle. We know obtuse angle क्या होता है, more than 90 degree but less than 180 degree. अगर two obtuse है तो 90 degree से ज़्यादा हो गए and we know adjacent angle का सम कितना होता है 180 degree. So that is false. In the adjoining figure, name the following pair of angles. Adjacent angle. Adjacent angle अगर हम देखें तो ROP and POS are adjacent, POS and QOS are adjacent. इसी तरीके से ROM and SOM these are adjacent. तो काफ़ी सारे पेयर्स है adjacent angles के. Next, write the name of adjacent angle in the given figure. Adjacent angle हो जाएंगे, इसमें अगर हम बात करें तो DOB एंड BOA, ये क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल. इसी तरीके से DOC एंड COA आर एडजेसेंट. क्लियर. इन द गिवन फिगर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल BOC 82 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ AOC. सो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री. तो एंगल AOC हो जाएगा 180 माइनस 82. सो ये हो जाएगा 10 and that is equals to 7. So ये हो जाएगा 8, 17 minus 8, 98 degree. Clear? Next, in the given figure, AB is a straight line and AOC equals to 4x plus 20 and BOC 3x minus 8. Find the value of x. So हमें पता है एडजेसेंट एंगल है, सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो दोनों का हम सम निकाल देंगे. माइनस 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री. 4 plus 3 7x, 20 minus 8 that is 12 equals to 180 degree. So 7x equals to हो जाएगा 180 minus 12. 7x equals to 168 divided by 7, 24 डिग्री. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डिग्री. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MOP 4x minus 10 and PON 5x plus 20 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. M एंगल POM एंड M एंगल PON मीन्स दोनों का मेजर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख के हम उसकी जो एंगल की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट, PQ and RS are two straight line. If angle POS 128 degree, find the measure of other angles. अगर ये 128 डिग्री है तो ये भी 128 डिग्री हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल ROP एंड SOP इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. तो 180 में से हम 128 माइनस कर देंगे. 52 डिग्री. ये हो जाएगा 52 डिग्री. सो दिस विल बी ऑल्सो 52 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है. क्लियर. नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है किसी एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री. सो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड वी कैन फाइंड द मेजर. क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स. सो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल DOA एंड एंगल AOB ये क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल. बट उससे पहले अगर हम देखें ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है तो ये 62 डिग्री है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 62 डिग्री. क्लियर. सो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. ये हो जाएगा 180 माइनस 62 प्लस 49. सो 62 प्लस 49 111. सो 180 में से हम 111 माइनस कर देंगे
सो दैट इज इक्वल्स टू 9 69 डिग्री, ये हमारा जाएगा 69 डिग्री। सो ये जो हमारा एंगल होगा वो होगा 69 प्लस 49, इन दोनों के सम के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। हमें देखना है कि कौन से एडजेसेंट एंगल्स है, कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और इस तरीके से हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of the measure of two angles is 90 डिग्री, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है। सो ईच ऑफ द सम सच पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। इन द गिवन फिगर एंगल AOC 32 डिग्री है, BOC 58 डिग्री है। सो AOC प्लस BOC कितना हो जाएगा? 32 प्लस 58 90 डिग्री। मीन्स AOC क्या कहलाएगा? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड AOC इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ BOC एंड BOC इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ AOC। क्लियर? नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो वो एंगल क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ईच ऑफ सच पेयर इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर इस फिगर में बात करें, POR 102 डिग्री है, ROQ 78 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? 102 प्लस 78 दैट इज 180 डिग्री। POR जो है वो किसका सप्लीमेंट होगा? ROQ का, एंड ROQ सप्लीमेंट होगा POR का। नो मोर। द एंगल्स विच फॉर्म द लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मीन्स उनका जो टोटल होगा 180 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स मे और मे नॉट बी एडजेसेंट। जरूरी नहीं है दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो एडजेसेंट भी हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Find the complement of each of the following angle. So angle is given 32. We know the sum of the complementary angle is 90 degree. So the other angle 90 minus 32, that is 58 degree. Clear? Next is practice session 9.2. Fill in the blanks. The sum of the measure of two complementary angle is 90 degree. Identify the pair of complementary and supplementary angle. So 63 plus 27, 90 degree, that means they are complementary angle. Next, find the complement of each of the following angle. Angle is given 60 degree, तो उसका complement क्या हो जाएगा? 90 minus 60 means 30 degree. Next, find the supplement of each of the following angles. So 69 degree given है, टोटल जो हो जाता है 180 डिग्री, उसमें 69 माइनस कर देंगे, 111 डिग्री। क्लियर? सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ लाइन। नाउ ट्रांसवर्सल। द लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ऐसी लाइन जो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। हियर अगर आप देखेंगे, अगर दो लाइन से MNN और L उसको कट कर रही है, तो L अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो L इज द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर MNN। हियर P is the transversal to the line M N N L, तीनों के लिए M N और L के लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगी। नेक्स्ट, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। व्हेन द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। कौन कौन से? लेट M and N आर टू लाइंस एंड L ट्रांसवर्सल है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1, 2, 7 एंड 8। एंगल 1, 2, 7 एंड 8 क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर, मतलब बाहर की साइड बन रहे हैं, बिकॉज दे आउटसाइड ऑफ लाइन M and N। इंटीरियर एंगल्स जो इनसाइड में होंगे, सो एंगल 3, 4, 5 और 6 क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, one of which is an exterior angle and the other is interior angle but they do not form the linear pair, वो कहलाता है corresponding angle। So pair of corresponding angle की अगर हम बात करें तो 1 and 5 इसमें से एक exterior एक interior है, पर इनका sum जो है 180 डिग्री नहीं है, they are not the linear pair। Clear? Same way 3 and 7, 2 and 6, 4 and 8 ये क्या हो जाएंगे? corresponding angle। Clear? नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो द इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म द लीनियर पेयर वो कहलाते हैं
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 6 को देखें, 4 और 5, ये क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। द एक्सटीरियर एंगल which are on the opposite side of transversal and do not form the linear pair are called the alternate exterior angle. 1 and 8, 2 and 7 are the pair of alternate exterior angle. Next is co-interior angles. The interior angles form on the one side of transversal of line, they are called the co-interior angle. Like 1 and 3 अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएंगे, co-interior angles. 4 and 6 are co-interior angles. Next, remember, when two parallel lines are cut by a transverse, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स कट करती है तो each pair of corresponding angle जो होंगे वो equal होंगे. Like angle 1 और 5 equal होगा, clear? 3 and 7 equal होगा, 2 and 6, 4 and 8, जितने भी corresponding angle होंगे वो equal होंगे. Each pair of alternate interior angle are equal. Like 3 and 6, 4 and 5. Each pair of alternate exterior angle will be equal. उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, 1 and 8 exterior, 1 and 8 and 2 and 7. The sum of co-interior angle जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के. तो 3 and 5, 3 and 5, 4 and 6, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. Learning tips. Two lines are parallel if and only if the pair of corresponding angle or the pair of alternate interior angle on the pair of alternate exterior angle is equal, तभी वो लाइन पैरेलल होगी. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. In the given figure, M is parallel to N and P is the transversal. If angle 175 degree है, we have to find the measure of angle 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. एंगल 1 हमारा 75 डिग्री. क्लियर? ये हमें गिवन है. सो हमें पता है एंगल 1 एंड 2 जो है लीनियर पेयर है, उनका टोटल कितना 180 डिग्री. तो एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 75, 105 डिग्री. क्लियर? नाउ वी नो एंगल 5 एंड एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे. तो एंगल 5 क्या हो जाएगा, 75 डिग्री. 3 और 5 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल है, तो वो भी 75 हो जाएगा एंगल 3. 6 एंड 2 क्या हो जाएंगे, 6 एंड 2 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो भी 105 हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे. 8 एंड 6 105 हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. 7 और 5 75 डिग्री होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल. 4 एंड 6 105 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट, सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. आपको सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 9.3. In the given figure, M is parallel to N and L is transversal. Find the measure of angle 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8. अगर एंगल 1 हमें गिवन है 65 डिग्री, एंगल 1 65 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65, 5 and that is equals to 115. So अगर एंगल 1 दैट इज 65, दैट इज एंगल 2 भी जो है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट मीन्स वो भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री. और एंगल 1 और 5 भी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी हो जाएगा 65 डिग्री. क्लियर? एंगल 2 अगर 115 डिग्री है तो एंगल 4 भी 115 डिग्री हो जाएगा. एंगल 2 एंड 6 जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो दैट मीन्स वो भी इक्वल हो जाएंगे. इसी तरीके से 2 और 7 इक्वल हो जाएंगे एंड 4 एंड 8 इक्वल हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर L इज पैरेलल टू P एंड M इज द ट्रांसवर्सल. फाइंड द वैल्यूज A, B, C, D. तो इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये हमें एंगल गिवन है 72, सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B हो जाएगा, तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा. ये हो जाएगा 180 माइनस 72, सो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, in the given figure L is parallel to M and N is parallel to P. Find the value of X, Y and Z. So इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इसमें क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, L और M पैरेलल है, N and P आर पैरेलल. सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये और ये इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी एंड इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी. अगर ये एंगल हमें गिवन है
85 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 85 डिग्री, तो ये भी 85 इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा. नाउ अब हमें पता है कि ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो 85, तो ये भी 85 हो जाएगा. क्लियर? इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर m इज पैरेलल टू n पैरेलल टू p एंड l इज द ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू. तो इस तरीके से हमें बस जो प्रॉपर्टीज़ है उनका ध्यान रखना है कि वो कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स हैं. तो अगर हमें ये पता है कि कौन से एंगल है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट. अगर हमें एक एंगल गिवन है तो हम दूसरे की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर m इज पैरेलल टू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो इफ दिस इज ट्रांसवर्सल, अगर हम इसको आगे करें प्रोड्यूस, सो ये 48 डिग्री है तो ये भी 48 डिग्री है. सो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, 48 प्लस 85, ये हमारा एंगल आ जाएगा. क्लियर? अगर हम इस तरीके से इसको प्रोड्यूस करें तो वी नो कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो ये इसकी जितनी वैल्यू उतनी ही इसकी होगी. सो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है 133 आ जाएगा एंड 180 में से माइनस करेंगे तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी अराउंड 247 के अराउंड आ जाएगा. इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? सो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. Next is, let's recall. Two angles with the same vertex, one common arm and other two arms lying on the opposite side of the common arm, they are called the adjacent angle. When sum of two adjacent angle 180 degree hai, then the pair of angles is known as linear pair. When two lines intersect each other at the point, two pairs of angle formed without any common arm are called the vertically opposite angle. The sum of the adjacent angle at the point on the one side of line is 180 degree. The sum of angle around the point is 360 degree. Two angles are said to be the complementary if their sum is 90 degree. Two angles are said to be supplementary अगर उनका sum कितना हो जाएगा 180 degree. A line which intersect two or more lines at distinct point, that is called transversal. If two parallel lines are intersect by the transversal, then each pair of corresponding angles क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे. Each pair of alternate interior angles equal होंगे. The sum of co-interior angle is 180 degree. If one pair of corresponding angles or alternate interior angles is equal, then line क्या कहलाएंगी, parallel. Next is miscellaneous practices. So ये सारे questions आपको खुद से practice करने हैं. Do practice all the questions. Next is multiple choice questions. Take the correct option. If two lines are intersect by the transversal, then the number of angle will be formed. अगर two lines intersect कर रही हैं, two lines are intersect by a transversal, तो total number जो form होंगे that is 8. 8 angles form होंगे. So answer C is the correct option here. Here we end the chapter. I hope you understand it well. Now you do practice it.